A very good morning, dear students. So today we are going to solve few questions which are from Science 1, Chapter 4, Electric Effects of Electric Current. That's the name of the chapter. So this is the second video I'm making on this chapter. So you can revise the first video for your reference. So let's start. Hi. So dear students, in this lesson we are talking about current. When we talk about current, so we talk about magnetism. When we talk about magnetism, we talk about magnetic field, we talk about insulators, we talk about resistance, we talk about circuits, we talk about different kinds of currents like AC currents, DC currents, we talk about electrical appliances, we talk about uses of electricity and consumption, then calculations of electric power used, calculation of work done by current. So these are the few things we discuss in this chapter. So here we have magnetism. So what is magnetism? Magnetism is a magnetic field created by or produced by electric current. So that magnetism created by electric current is called electromagnetism because it is produced by electric current. Another thing is we always measure everything in physics. In physics we measure all the things because physics is based on calculations, measurement, area, shapes, everything. So its direction and its the visual the visual measurement, so we call it as magnitude and direction. So magnetism or magnetic field is a vector quantity. Vector means it has direction. That means whenever we are measuring magnetic field or checking the units of magnetic field, so we have to consider direction. When the direction is not considered, then it is scalar quantity. So magnetic field is a vector. Next thing is, in India, AC. AC changes its direction in intervals of 1 upon 100 per second. AC means current, alternate current. In India, AC changes its direction in interval of 1 upon 100 per second. What does it mean? मतलब 100 सेकंड का एक हिस्सा, when 100 second takes place, then it changes its direction. And period, in period intervals, in terms of period, like this much time, this much time, this much time, that is the 50th part of 1 second. That means in a fraction of second it is changing its direction as well as its period. These two things are changed by AC current in this particular time. This method is used in India, so we talk about India. Next is electrical appliances. Kids, you might be knowing that whatever things we are using in our house or in offices, in our life, so there are many electrical appliances. Appliances means nothing but the product, the things we use. So there are few things which are called as electrical appliances like TV, fan, oven, iron, AC. Iron means cloth iron. AC, fuse. Fuse, you might be knowing what is fuse. So you might have seen your meter board in your buildings, societies. So if you go to the body, even sometimes it is
install at your house also. So it is used, it is the main connection of the current. So fuse, toaster, geyser, etc. These are called as electrical appliances. Next thing to be understood is what is Joule's law. Joule was a scientist. Joule's law of heating effect of electric current. बिजली जब चलती है, यूज होती है, तो जिस भी कंडक्टर के जरिए वो पास हो रही होती है, जिस भी रेजिस्टर के जरिए वो पास हो रही होती है, उसको वो हीट करती है. सपोज आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल जब ज्यादा यूज होता है तो गर्म हो जाता है. वैसे ही जब वायर्स होते हैं, ये कंडक्टर है, मतलब इसके अंदर जो मेटल यूज हुआ है, दैट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टर. तो जब इसके अंदर से बिजली पास होती है तो ये गर्म होता है, इट इज हीटेड. और जब ये गर्म होता है तो उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं कि वो कितना गर्म हो रहा है. सो दैट is normally checked. So there are a few laws made for it. So Joule's law of heating effect of electric current says that the quantity of heat produced because of the current in the resistor, in a particular time, मतलब एक सेकंड में जो I फ्लो हो रहा है, I मीन्स करंट, एक कंडक्टर के जरिए, एक रेजिस्टर के जरिए एक सर्टेन टाइम में, तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी वो हीट जो गर्मी पैदा हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तीन चीजों के. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मतलब सीधा रिश्ता उसका है किस चीज से? SRT. S मीन्स square of the current, resistors of the conductor or resistors. Third is time taken for the current to flow. तो जितना करंट है उसका स्क्वायर, जो रेजिस्टर है वो, और लगने वाला टाइम, ये तीन चीजें सीधा सीधा रिलेशन रखती हैं हीट कितना प्रोड्यूस होगा उसको चेक करने के लिए. दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. लेट्स गो दैट साइड. यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है. Now question comes, what is a circuit? Circuit means current flowing path. It's a current path. हर चीज के लिए डायरेक्शन होता है ना. जैसे इंसान चलते हैं तो हमारे लिए पाथ बनता है, फुटपाथ बनता है, रोड बनता है, ब्रिजेस बनते हैं, हमारे लिए रास्ते बनते हैं. इवन जो एरोप्लेन फ्लाइट्स चलती हैं, एयरवेज, उनका भी पाथ होता है, उनका भी एक रूट होता है. वैसे ही करंट को अगर फ्लो देना है, and I want to use current, so I'll have to create a path for it. कैसे कैसे वो जाएगा, then only it will work properly, of course. So circuit. So I have drawn a circuit which is already given in your textbook. So it is here, if you know the things how it works, so you can draw it by your own method, but the process should be same. In the order, the sequence should be same. So what happens here in this circuit? इस सर्किट में होता क्या है, या फिर कोई भी सर्किट में होता क्या है? हम करंट को फ्लो कर रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर्स को हम फ्लो करते हैं. तो वो कैसे फ्लो होता है? यहाँ पर हम करंट की बात करेंगे. तो ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, दे आर द वायर्स और कंडक्टर्स. यहाँ पे करंट जब पास होता है तो कहीं ना कहीं से शुरू होता है. तो हम लोग एक सेल ले सकते हैं. तो बच्चों के दिमाग में आता है सेल बोला तो सिर्फ एक छोटा सा सेल. नो, सेल का मतलब है सोर्स ऑफ एनर्जी. इट कैन बी बिग बैटरी, लाइक जो इन्वर्टर्स वगैरह में यूज होता है, और इट कैन बी ऑफ ह्यूज साइज, और इट कैन बी अ ट्रांसफार्मर. ठीक है. तो
छोटे लेवल पे जानने के लिए हम यहाँ पे इसको सेल बोलते हैं। तो सेल कनेक्ट कर दिया, एक वायर एक साइड में, दूसरा वायर दूसरे साइड में। सेल आपको पता है ना, एवरेडी का या फिर डोरा सेल, एक साइड प्लस होता है एक साइड माइनस होता है। तो सेल को यहाँ पे लगाया, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस। ठीक, अब जैसे ही वायर ज्वाइंट किया तो कुछ तो होगा। सो क्या होगा, जो बैटरी के अंदर करंट था अब उसको रास्ता मिल गया जाने के लिए। अब वो जाना शुरू करता है। कैसे जा रहा है, तो मैं मिला उससे और पूछा, ये भाई तू कौन? तो बोलता है आई। आई कौन? तो बोलता है करंट। आई मीन्स करंट। अच्छा तो तू बिजली है? तो मैंने बोला हाँ। पूछा उससे, तो बिजली है? तो करंट बोलता है हाँ, आई एम आई। फिर मैंने बोला तुझे तो मैं जाने ही नहीं दूंगा। तो मैंने क्या किया, स्विच बंद कर दिया। क्या बंद किया? स्विच। तो मतलब ये स्विच है। क्या है? स्विच। तो स्विच में ऑन ऑफ ही तो करना होता है। प्लस आ रहा है तो प्लस किया, दबा दिया तो प्लस कनेक्शन चालू है, फ्लो चालू है, करंट का फ्लो चालू है। जैसे स्विच ऑफ कर दिया ब्रेक हो गया, नो करंट। तो करंट को यहाँ हम रोक सकते हैं। कहाँ पे? स्विच के। कौन जा रहा था? आई। रुकना और फ्लो करना कहाँ पे है? स्विच। चलो स्विच ऑन कर दिया, क्या होगा? करंट फ्लो होगा। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब ये एक पॉइंट आया, तो यहाँ पर आर बना हुआ है। आर का मतलब है यहाँ पे ना करंट यूज होता है, रेजिस्ट कर रहा है करंट। कोई भी उसमें एक डिवाइस लगा है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हुआ है जो करंट को यूज कर रहा है। मतलब यहीं पे पता चलेगा कि ये जो करंट जा रहा था वो जाके करेगा क्या। तो ये करंट आके यहाँ पे क्या करता है, पॉइंट ए तक आया और पॉइंट बी तक जाता है, तो वो कुछ करता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बल्ब। यहाँ पे अगर एक बल्ब लगा दूं तो बल्ब जलेगा जलेगा, वो धीरे धीरे जल रहा है। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर पावर नहीं है। तो क्या कर रहा है वो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसको वो हीट कर रहा है। बल्ब के अंदर जो नाइक्रोम का वायर होता है उसको हीट करता है, और वो हीट करने से उसका लाइट बढ़ता है और वो ग्लास पे रिफ्लेक्ट करके लाइट स्प्रेड करता है। सो हियर देयर इज अ बल्ब दैट इट कैन बी एनी अप्लायंसेस, कुछ भी हो सकता है। तो करंट फ्लो हो रहा था और उस चीज में यूज हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस में यूज हुआ। तो इस दौरान हुआ क्या एक्चुअली, करंट आता है, अप्लायंस यानी रेजिस्टेंस में यूज होता है, यूज होने से हीट प्रोड्यूस होती है और उसमें करंट का, बाद में मैं मिलता हूँ करंट को पूछता हूँ, ए तू गया बल्ब चालू किया फिर काम खत्म हो गया बराबर, तो कितना करंट यूज हुआ, कितना? तो बोलेगा वोल्ट मीटर लगा के चेक कर लो, मेरे से मत पूछो। क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर। क्यों? क्योंकि वोल्टेज चेक करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं और उससे पता चलता है कितना एम्पियर करंट यूज हुआ या नहीं। वो मीटर कहाँ लगेगा? यहाँ पे, और बताएगा कितना एम्पियर करंट यूज हुआ कितना नहीं। तो ये मुझे जानना था कि करंट सिर्फ बल्ब नहीं जलाना था। Mind it. It was not my intention to just switch on the bulb, use it and sleep. I was interested in knowing what happens with the current. So the current starts from the cell, goes to the resistance point, that is A to B. The resistor is using the current and there is some kind of heat produced in some quantity. So I want to know that in that process how much current is used, lost, or how much is not used. To check that, I should know that from point A how much current was passing, from point B how much
current came out. So what is the difference? So that difference is called as potential difference. It is called as potential difference. और उसको हम शो करते हैं V से. ऑफ कोर्स करंट आ रहा था तो करंट ऐसे गया, यहाँ पे यूज हुआ वोल्ट, प्लस एक माइनस का साइन मैंने दिया है, वोल्ट मुझे यानी पोटेंशियल डिफरेंस पता चला. कैसे मैं चेक करूंगा बाद में, तो मुझे पता चल जाएगा कितना करंट यूज हुआ है. इस तरीके से वोल्ट यूज फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी. तो यही करंट को इसके अंदर मैंने, ये एक्सटेंशन है एक्सप्लेनेशन का, ये इतना ही काम हुआ है, लेकिन इसका एक्सटेंशन है कि करंट आया तो हुआ क्या, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम पड़ा. वोल्ट ए और बी में ट्रैवल करता है तो कितना चार्ज यूज होता है. ओके, चार्ज का होता क्या है, चार्ज मतलब करंट का होता क्या है, और फिर वापस इस डायरेक्शन में वो करंट आ जाता है. मतलब इसको जितनी जरूरत है, द डिवाइस, द अप्लायंस use as a resistor uses the current and then allow the current to go further. तो ये करंट वापस यहाँ पे आता है, यहाँ पे चेक होता है. अगर वहाँ पे चेक करने के लिए कुछ लगा हुआ है तो otherwise it will flow like this. So this minus sign does not mean that कि वो कुछ माइनस कर रहा है. This plus sign does not mean that कुछ प्लस कर रहा है. It just denotes that कि आ जा भाई, और इधर से मैंने तेरा लिया था तू ले ले भाई. दिस इज व्हाट प्लस एंड माइनस. ओके, यहाँ से जब इसमें सेल में सेल लगाया गया, ये सेल जब अंदर जाके फिट किया गया तो ये बोलते हैं आ जा भाई. तो करंट गया, यूज हुआ, रिटर्न आया, तो अब वायर बोल रहा है तू ले ले भाई. This is called plus minus. Okay. One more thing I would like to tell you. What is AC current? What is DC current? This is called electric circuit. Okay. So this comes in the exam for 2 marks. You have to draw this, or if they have already given, they will ask you what is this, what is that. Okay, some related question will come. So children, you should also know what is AC current. AC current means alternate current. DC direct current. Alternate current का मतलब होता है it changes the direction in a particular period of time. जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है. जबकि मैंने उसको बोला था 10 सेकेंड्स में आपको बिजली मिलेगी, मतलब करंट 10 सेकेंड्स तक जाएगा. तो 10 सेकेंड्स तक करंट गया, लेकिन वो अलग अलग जगह पे घूम के गया. काम ज्यादा किया उसने, टाइम भी कम लिया. तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ना करंट ज्यादा यूज हो रहा है, काम कर रहा है लेकिन करंट ज्यादा यूज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होता है. तो इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस. अब डायरेक्ट करंट क्या होता है? आपके घर के अंदर अगर मैं बोलूं एग्जांपल, ऑल्टरनेट करंट का एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल होगा हाउस अप्लायंसेस. तो हमारे घर में, हमारे ऑफिस में जो करंट यूज होता है, ठीक है, ऑफिस करंट, स्कूल, जो भी हम यूज करते हैं, यूजेबल जो चीजें हैं, उसमें जो करंट पास होता है वो अल्टरनेट करंट, एसी करंट होता है. चेंजेस द डायरेक्शन, इट कैन गो एनीवेयर एनी टाइम. छोटे बड़े सभी, हर तरह के डिवाइस में, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीज में यूज हो सकता है. डीसी करंट डायरेक्ट करंट होता है. इट मींस ये स्टार्ट होगा एक बैटरी से या फिर ट्रांसफार्मर
ठीक है, यहाँ से ये शुरू होता है और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जैसे यहाँ पे टाइम था 10 सेकेंड्स, तो इसको 10 सेकेंड्स में यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये चुपचाप चला जाएगा। यहाँ पे करंट लेस यूज होता है, क्यों? उसका डायरेक्शन स्ट्रेट है, वो सीधा पॉइंट पे जाता है, और करंट यहाँ पे हाई पावर का होता है, वेरी हाई पावर। आपने देखा होगा ट्रेन के ऊपर बड़े बड़े वायर्स, मोटे मोटे वायर्स लगे होते हैं, तो वो डायरेक्ट करंट वाले वायर्स होते हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा कि आपके सोसाइटी में या सोसाइटी के बाहर रोड पर कहीं पर 2 खंबे लगे हैं, उसके ऊपर बड़ी सी मशीन रखी है और वहाँ से अलग अलग वायर्स कनेक्ट किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। तो उसके अंदर बिजली ट्रांसफॉर्म करके घरों में, जब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट बना के घरों में सप्लाई होती है, तो कोई कबूतर आके उस पर बैठ जाएगा तो डायरेक्ट करंट में उसका बॉडी टच हो जाता है, ब्लूम, फिर लाइट गुल। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है उसके अंदर कि विदिन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स वो अपने आप से रीएडजस्ट हो जाता है और फिर से लाइट चालू हो जाती है। इट वॉज एन एग्जाम्पल। सो डायरेक्ट करंट जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर या बड़े बड़े बैटरी से निकल के, बड़ी बैटरी इन द सेंस जो कार में यूज होता है, जो इन्वर्टर में यूज होता है, इन्वर्टर हमारे घर से कनेक्ट नहीं है, इन्वर्टर बाहर का सोर्स है, वो डायरेक्ट करंट हमारे सर्किट में भेजता है और हमारे सर्किट से ऑल्टरनेट करंट बन जाता है, राइट। तो बैटरी और ट्रांसफार्मर जैसे जगहों से, बड़े बड़े लेवल की जगहों से करंट जो पास होता है उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। वो सीधा सिंगल डायरेक्शन में जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रैवल करता है, इसलिए उसका कंजम्पशन कम होता है, इसीलिए वो बहुत हैवी पावर वाला होता है, हाई वोल्टेज वाला होता है। हाई पावर या तो हाई वोल्टेज। इसमें शॉक लगा, डीसी में शॉक लगा, एसी में झटका, एसी में झटका, अल्टरनेट करंट में झटका मिलेगा, डीसी में डेथ सर्टिफिकेट। इसके लिए ट्रेन के ऊपर जो लोग चढ़ के ट्रैवल करते हैं या मस्ती करते हैं वो सीधा सुहाग हो जाते हैं। दैट्स इट, फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो